students, welcome to biology class of StudyGist. Today we will discuss some question answers from the chapter tissues. Okay, so before moving on to this discussion session, I would like to remind you about our social media platforms through which you can connect with us. As you can see on the screen that StudyGist Academy is our YouTube channel. Do subscribe our channel, like our Facebook page, join our Telegram channel. The link is given here and it looks like this, and here you can check out the name of the channel, StudyGist School 7 to 10. In this channel, about the live classes and the study materials, you will be getting each and every updates clearly. Follow us on Instagram, and you can also connect with us through WhatsApp community. The number is displayed over the screen. Note it down. And for more updates, for more details, you can visit our website www.studygist.in. Now in Google Play Store, our free app of StudyGist is available. It looks like this. It's a very user-friendly app, and through this app the live classes are being conducted, and each and every updates about the live classes also, and the study materials like the recorded classes, these are also available here. So do download this app and install it now. This is how our YouTube channel looks like. As I told you earlier, do subscribe our channel and hit the bell notification to get notified. This is how our Facebook page looks like. So like us on Facebook too, to be united with us continuously. Now let's moving on to our discussion. So our first question is, choose the correct options. Some multiple choice questions. We are starting our question answer session with that. Presence of tissues in a multicellular organism ensures what? Faster development, division of labor, higher reproductive potential, or body strength. So what do you think? The division of labor in multicellular organism, this is a very common term. So the answer will be division of labor. Next, a group of cells alike in form is they are similar with each other, and not only by form, by their function, by their origin, all are same, and they are forming a group. So group of cells forming a particular function, having similar type of structure and look, they are known as tissue, right? Next one, which of the following statements given below is correct about the meristematic tissue? So before that, before reading these points what are given, I want to remind you that the meristematic tissues are those tissues which are dividing in nature, right? Dividing in nature. So definitely they are capable of cell division. So first option is given. It's made up of the cells that are incapable of cell division. Definitely it's not possible. Is made up of the cells that are capable of cell division. So this will be the correct answer. Let's check out what the other options are. It's composed of single type of cells. No, not necessarily. And it's composed of more than one type of cell. This is also not applicable for the act of meristematic tissue. It's only dividing in nature, and its only function is to divide and give proper growth and development to that organ, right? Next, the nuclei of the meristematic cells are how they are looking. They are larger in size, right? We have studied that this will be the large. Answer will be large. The cell wall of the meristematic tissue, what is the composition of it? Basically, in all cases, the meristematic tissue, the cell wall composition is the cellulose, right? Next, parenchyma, which contains chlorophyll. We have studied some special types of parenchyma cell, which one type of parenchyma which contains chlorophyll within it, that is known as chlorenchyma. Next one, parenchyma is a type of, which type of tissue? Parenchyma is a simple tissue, right? It's not complex, it's simple tissue made up of similar types of cell. Parenchyma tissue is made up of parenchyma cell. Collenchyma tissue is also one example of simple tissue, right? Next is parenchyma, simple, phloem. So what will be the answer will be simple, collenchyma, complex, and phloem. So parenchyma is simple, and phloem is which type of tissue? It's a complex tissue.
So like the xylem, phloem is also a complex tissue, and parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, these are simple tissues, right? Next, phloem in the plant, it performs which function? It helps in the conduction of food, moving of food from one place, or not really one place, from the leaves to different parts of the plants. That is the main function of the phloem. So conduction of food, this will be the answer. Next one, collenchyma mainly forms which part? See, I have told that the most outer layer in a plant cell, in a tissue, plant tissue, is the epidermis, and epidermis is covered with a waxy layer over it, that is known as, this is epidermis, and over this what is present? Cuticle is present, right? And just below, from below the epidermis, there are 2 to 3 layered structure formed of dense cells, densely packed or densely arranged cells without any intercellular space. We know that the parenchyma, these are kinds of cells or tissues which are having their intercellular space, but here the layer which I am drawing right now, there the cell walls are thicker. And why? Because here it's lack intercellular space, right? So this layer, 2 to 3 layered, this layer is known as hypodermis, and this hypodermis layer, which is present just below the epidermis, it is made up of collenchyma tissue, collenchyma simple tissue. All right, so answer will be hypodermis. Next one, the permanent tissues differ from the meristematic tissues. Permanent tissues, meristematic tissue, I want to remind you that meristematic tissues are the dividing tissues, just now we have been discussing. So initially there is no existence of the permanent tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइड करता है, वो डिवाइड करके क्या करता है, ये है हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हैविंग न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है, ये डिवाइड करता है, ये तीनों डिवाइड किया, तो ये 3 सेल्स थे, 3 मेरिस्टेमेटिक सेल, डिवाइड करने के बाद 6 सेल्स बन गए, फिर ये बनाएंगे 12 सेल्स, एंड लाइक दिस इट विल गो ऑन, एंड अल्टीमेटली ये प्रॉपर मेच्योर बॉडी बनाने में हेल्प करेंगे, राइट। सो परमानेंट टिश्यू से इसका बेसिक डिफरेंस क्या है, इनएबिलिटी टू डिवाइड, डेफिनेटली परमानेंट टिश्यू जो है वो डिवाइड नहीं कर सकता है, जैसे कि परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग। नेक्स्ट इज अटेनमेंट ऑफ डेफिनेट शेप एंड साइज, परमानेंट टिश्यू उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वो है, एंड परफॉर्मिंग अ डिस्टिंक्ट फंक्शन। सो ऑल दीज things, all these matters are basically used to differentiate between the permanent tissues and the meristematic tissue. Attaining a definite shape and size, ये permanent tissues में हो जाता है, right? meristematic tissue divide करता है, permanent tissue तक जब पहुंच जाता है तब ये proper definite size and shape और shape and size में convert हो जाता है, ये रहता है permanent tissue में, right? Next one, tissue that is absent in monocots. Monocots mean having those plant, those are having only one cotyledon. एक cotyledon रहता है जिसमें, ये किस में नहीं रहता है, किस में absent रहता है, collenchyma. Collenchyma tissue is absent in the monocot. Next one, great of Peer is formed of, great of Peer is formed of what, which part of this following, sclerenchyma fiber, ट्रैकेट्स, कंपेनियन सेल्स, ये सब नहीं है, क्या है, स्क्लेरिड्स और स्क्लेराइड्स जो कि डेड पार्ट है, राइट। नेक्स्ट वन, विच वन इज मेड ऑफ डेड सेल, डेड सेल से कौन सा पार्ट क्या बना होता है, देखो यहाँ पर है स्क्लेरेंकाइमा, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। तो डेड सेल कौन सा है, सारे के सारे डेड सेल्स ही हैं,
राइट। नेक्स्ट इज जाइलम इज मेड ऑफ, क्या रहता है इसमें, ट्रैकिड्स भी रहता है, वेसल्स भी रहता है, दोनों रहता है। सो आंसर विल बी बोथ ऑफ दीज मीन्स ए एंड बी, जो कि ये आगे का ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, फ्लोएम इज मेड ऑफ, फ्लोएम में क्या रहता है, फ्लोएम में देखो सीफ ट्यूब्स रहता है और सीफ ट्यूब्स के से पास उसके साथ साथ ही फ्रेंड के तरह, कंपेनियन की तरह कंपेनियन सेल्स भी रहता है। सो अनदर इन केस ऑफ फ्लोएम द आंसर इज ए प्लस बी, दैट मीन्स दोनों ऑप्शन, सीफ ट्यूब्स एज वेल एज कंपेनियन सेल्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल टिश्यू इन प्लांट्स। देखो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों सिंपल टिश्यूज के एग्जाम्पल हैं। तो बचा कौन, दिस जाइलम। सो जाइलम एंड फ्लोएम, दीज आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, दीज टू आर कंसिडर्ड टू बी द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू नहीं है कौन, जाइलम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ जाइलम इज लिविंग। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, और मतलब फाइबर, जाइलम फाइबर जो है उसी को स्क्लेरेन्काइमा बोल रहे हैं, क्योंकि फाइबर्स स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से ही बना होता है, राइट। सो जाइलम जो है, टोटली ये चारों पार्ट है जाइलम का, इसमें ट्रैकिड्स, वेसल्स और स्क्लेरेन्काइमा और द जाइलम फाइबर्स, बोथ these all the three parts, these are inside the xylem dead in nature. Only the xylem parenchyma that is the living part. इसीलिए whole xylem को हम लोग dead ही consider करते हैं, लेकिन उसमें only the xylem parenchyma is living by nature. Next is which of the following components of phloem is absent in the monocot stem? The answer will be phloem parenchyma, right? Next of these following components of phloem, what is the non-living? Non-living phloem normally जो है gross in if we consider phloem को living tissue माना जाता है, but only the bast fibers or the phloem fibers, these are the dead part in it. So answer will be option C, bast fibers. Now coming to the question answer session. First question is, what is the skeletal connective tissue and what are these functions? Skeletal connective tissue is the tissue which forms the endoskeleton of the body of vertebrates. Vertebrates means we are having our own skeleton. Vertebral column, we are having vertebral column, those are called vertebrates, right? It includes क्या, इसमें क्या रहता है, bones रहता है, cartilage रहता है. Cartilage in short we can say these are the soft bones, right, which can move. और इसका फंक्शन क्या होता है, is to give support बोन्स एंड कार्टिलेज, ये इसमें है तो इसका क्या फंक्शन होता है, सपोर्ट देना, तो ये भी हम लोग को सपोर्ट देता है। एंड गिव अ डेफिनेट शेप ऑफ आवर बॉडी एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सच एज द ब्रेन, ईयर, हार्ट, लंग्स। हार्ट, लंग्स जो चेस्ट कैविटी में होता है, दीज आर बीइंग प्रोटेक्टेड, राइट। सो दीज आर वेरी वाइटल ऑर्गन्स विच आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इज व्हाट इज साइनेप्स। देखो, this is a very important part where basically this is the junction between two terminal parts, junction between two successive nerve cell or neuron. देखो, ये एक nerve cell है, this is an axon, this is a dendron, okay, and these are the synaptic नर्व्स। अब जहाँ एक नर्व सेल और एक न्यूरॉन खत्म हुआ, वहीं से दूसरा नर्व सेल जो है वो शुरू हो जाएगा। नाउ इट विल मूव ऑन लाइक दिस। सो ये जो जंक्शन है, दिस इज द जंक्शन विच इज नोन एज द साइनेप्स। टर्मिनल पार्ट ऑफ वन एक्सन, एक्सन मीन्स दिस वन एक्सन और मेन नर्व, एंड द डेंड्राइट, डेंड्राइट आर द रिसेप्टर्स, दीज आर व्हाट, dendrite, these are the receptors, right, of the adjacent neuron. It is called synapse and it helps in the transmission of the impulses from one neuron to another neuron. इसमें क्या रहता है, इसमें एक fluid रहता है that is known as acetylcholine, right, acetylcholine रहता है। इस fluid के थ्रू मैसेज जो है, इम्पल्स जो है, नर्व इम्पल्स जो है वो
ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन नर्व और वन न्यूरॉन टू इट्स नेक्स्ट न्यूरॉन. नेक्स्ट वन, नेम द प्रोटीन विच इज फाउंड इन द व्हाइट फाइबर एंड येलो फाइबर. तो हम लोग जानते हैं कि व्हाइट फाइबर में जो है इलास्टिन प्रेजेंट रहता है. व्हाइट फाइबर में कोलाजन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है और इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है किसमें? येलो फाइबर में, राइट. नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द प्लांट बॉडी अगेंस्ट द इन्वेशन ऑफ द पैरासाइट्स. एपिडर्मिस is the outer layer which basically protects, right? So it's a protective layer of the plant body which doesn't allow the parasites are the germs, kind of germ, to gain entry into the internal tissues of the plant. Due to what? Due to absence of intercellular space, due to thick outer walls, due to the deposition of cutin and wax like substance in the cuticle layer which is covering the nucleus, एपिडर्मिस के बाहर जो वैक्सी लेयर होता है वो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्यूटिकल कहा जाता है, जो मैंने आपसे कहा. एंड ड्यू टू द सिलिका एंड अदर डिपोजिशंस. नेक्स्ट वन, इन दिस फिगर यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द पार्ट्स इज मार्क्ड एज 1, 2 एंड 3 एंड ऑल्सो यू हैव टू स्टेट द फंक्शन. तो पहले ये जो स्ट्रक्चर, ये जो फिगर है, फिगर किस चीज़ का है? दीज आर बेसिकली द लोकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट. अब ये एपिकल पार्ट है, तो ये क्या हो गया आपका? एपिकल मेरिस्टेम. अब एपिकल मेरिस्टेम किससे रेस्पॉन्सिबल है? इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट पार्ट, द शूट, द ब्रांचेस, द लीव्स. दिस इज द मेन फंक्शन. ओके. एंड नंबर 2 जो है वो क्या है? नंबर 2 इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो क्या करता है? यहाँ पर पूछा नहीं गया, स्टिल आई एम टेलिंग यू, इट हेल्प्स इन द इंटर नोडल इलोंगेशन. नोड्स में रहता है तो ये इंटरनोड्स पार्ट में रहता है, तो ये इंटरनोड पार्ट को उसके ग्रोथ में, उसको इलोंगेट करने में हेल्प करता है, राइट. एंड नेक्स्ट वन इज द नंबर 3. दिस इज द लैटरल मेरिस्टेम. और ये लैटरल मेरिस्टेम क्या करता है? एक प्लांट को ब्रेथ में, विड्थ में बढ़ाता है, राइट. गर्थ ऑफ द रूट्स एंड एज वेल एज द स्टेम. नेक्स्ट वन, एनिमल्स ऑफ द कोल्डर रीजन एंड फिशेज ऑफ कोल्ड वाटर हैव थिकर लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट. सो व्हाई? ये इसमें डिफरेंस क्यों है? कोल्ड वाटर में जो, या फिर कोल्डर रीजन में जो फिशेस रहते हैं या जो भी एनिमल्स रहते हैं, उन लोगों में सबक्यूटेनियस फैट का जो लेयर होता है वो थिकर होता है या ज़्यादा होता है. हम लोगों में उतना नहीं होता है. वाई? बिकॉज द इन एनिमल्स द सबक्यूटेनियस फैट फंक्शन एज द इंसुलेटिंग लेयर, राइट. और इंसुलेटिंग लेयर के हिसाब से काम करता है, इसीलिए इट कैन प्रिवेंट द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी इन द कोल्ड एनवायरमेंट. So in the animals which are present in the colder regions or colder areas, and also the fishes who are the dwellers of the cold water, they possess thicker layers of this subcutaneous fat. So that it can act as the insulator और body को ये body में जो heat चाहिए उस cold weather में भी heat generate कर सके. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स. वॉलंटरी मसल्स वो है जो मसल्स हम लोगों की विल से काम करते हैं, मतलब वॉट एवर वी वॉन्ट वी कैन फंक्शन लाइक दैट, राइट. ब्रेन कैन स्टॉप और स्टार्ट देम, राइट. एंड दे गेट फैटिग्ड आफ्टर सम टाइम. हम लोग कोई भी काम करें, कोई भी काम हम लोग रनिंग कर रहे हैं, हम लोग फॉर द वॉलंटरी मसल वी कैन रन, और द स्केलेटल मसल्स और स्ट्रिएटेड मसल्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स. तो इसके लिए हम लोग रन कर रहे हैं. रन बहुत टाइम करने के बाद, बहुत देर तक करने के बाद वी फील फैटिग्ड, तब हम लोग को रुकना होता है. आफ्टर दैट, उसके बाद जब फिर जो मसल क्रैम्स जो भी है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, फिर हम अपना जो काम है वो फिर से कर सकते हैं. एंड इनवॉलंटरी मसल्स आर दोज मसल्स विच एक्चुअली डू नॉट केयर अबाउट आवर विल. हम लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कि कब चाहते हैं, इसमें डिपेंड ही नहीं करते. जैसे कि हम लोग का हार्ट बीट,
या फिर हम लोग जो खाना खाते हैं, जो हम लोग की फूड पाइप से या इसोफेगस से जो खाना पास होता है वो हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग की लंग्स की जो मूवमेंट है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, वो हम लोग कब चाहेंगे कब नहीं चाहेंगे उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दीज आर कंटिन्यूसली मूविंग ऑन एंड देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज विच आर गोइंग ऑन इनसाइड आवर बॉडी, जिसके लिए ये मसल्स डू नॉट टेक परमिशन ऑफ अस। नेक्स्ट इज वाटर हायसिंथ फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस। एक्सप्लेन। वाटर हायसिंथ एक वाटर प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट है। इट हैज स्पॉन्जी पीटियोल्स। पीटियोल मीन्स लीफ का जो स्टॉक होता है, इसको क्या कहते हैं? पीटियोल, राइट। सो इसमें एक स्पॉन्जी पीटियोल, स्पॉन्जी लीफ स्टॉक रहता है विच encloses a lot of air in its parenchyma. Parenchyma having air bubbles, having vacuoles, air vacuoles known as parenchyma. And this air makes the plant lighter, हल्का बना देता है than the water, so that it can be able to float on the surface of the water. Parenchyma रहता है इसीलिए it can float. Now why this xylem and phloem? Next question is why xylem and phloem tissues are considered to be कॉम्प्लेक्स टिश्यूज? क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज वो होता है जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ जो टिश्यू बनता है, जिस सेल से बनता है, वो एक ही टाइप का नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व टू डू अ पर्टिकुलर फंक्शन, तो इसीलिए इन लोगों को कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहा जाता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द टिश्यूज इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा सेल रहता है और बहुत सारा सेल के अंदर क्या रहता है? एक कोऑर्डिनेशन रहता है। एक टिश्यू के अंदर बहुत सारा सेल रहता है, हर एक सेल का असाइन फंक्शन है, वो सारे सेल अपना अपना काम करता है और इससे क्या होता है, टोटल जो टिश्यू है वो टिश्यू भी अपना काम सही से कर पाता है। तो इन अनदर टर्म इज कमिंग, दैट्स अ डिविजन ऑफ लेबर। काम जो है वो बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है ताकि वो काम सही से हो पाए। सो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ द टिश्यूज एंड द डिविजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट, हाउ आर द सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स टिश्यू? सिंपल टिश्यू जो होता है वो एक ही टाइप का सेल से बनता है, वेयरएज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज वहाँ पर जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम, सिंपल टिश्यू का एग्जाम्पल आपका हो गया कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एक ही टाइप का सेल से बनता है। इन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम, इसमें बहुत टाइप ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व, मेनी मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन द प्लांट्स। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा? स्टोमाटा हम लोग क्या जानते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज परफॉर्म बाय द stomatal pore, that is the transpiration. That means the excess amount of water inside the plant body जो रहता है वो उसको in the form of water vapor उसको रिलीज कर दिया जाता है, और ये रिलीज करता है ये प्लांट थ्रू द स्टोमाटा। नेक्स्ट वन, हाउ डज कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू? कॉर्क जो लेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि कॉर्क में जो सेल रहता है वो डेड सेल होता है, और जो भी डेड सेल रहता है उसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता है, तब ये क्या बन जाता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एंड द सेल वॉल ऑफ द कॉर्क, दीज आर कोटेड विथ सुबरिन। सुबरिन इज अनदर वैक्सी सब्सटेंस। नाउ दिस प्रेजेंस ऑफ दिस सुबरिन मेक्स दिस सेल इम्परमेबल टू वाटर एंड गैसेस। सुबरिन रहता है, वैक्सी सब्सटेंस रहता है, इसीलिए वाटर या गैसेस किसी को भी अंदर आने का कोई परमिशन नहीं है, नहीं आ सकता है, ना ही कुछ जो अंदर है वो बाहर जा सकता है। सो कॉर्क इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन एंड प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइन टिश्यू, जो कि इसके नीचे जो भी टिश्यूज है उसको डेसिकेशन या फिर वाटर लॉस से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है, एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरी। नेक्स्ट देखो, what will happen if the bone is dipped in hydrochloric acid? बोन्स को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप कर दिया गया तो क्या होगा? तब क्या होगा, इसमें जो मिनरल्स है वो डिजोल्व हो जाएंगे एंड ओनली द ऑर्गेनिक मैटर बच जाएगा। नेक्स्ट इज बोन अगर ड्राई हो गया, हम लोग बॉडी में जितने भी बोन्स हैं सब अगर ड्राई आउट हो गया तब क्या होगा, ड्राई हो जाने से ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सिर्फ मिनरल जो है वो रह जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर लिगामेंट गेट्स ओवरस्ट्रेच्ड तब क्या होगा, लिगामेंट ओवरस्ट्रेच से स्प्रेन क्रिएट होगा, राइट। नेक्स्ट, अगर ब्लड में हेपरिन नाम का सब्सटेंस नहीं रहा तो क्या होगा,
हेपरिन नहीं रहेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, कोआगुलेशन नहीं होगा ब्लड वेसल के अंदर, तो क्या होगा, ब्लड वेसल कम रहेगा। तो ये बेसिकली होता है आपका जब बहुत सारा ब्लड लॉस होता है हम लोग को, इसमें तब मतलब दिमाग में आता है हम लोगों को कि हेपरिन कम है, हम लोग को यही मानना है। ओके, नेक्स्ट, striated मसल कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तब क्या होगा, दे गेट फैटिक ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो क्या हो जाएगा तब, मसल में क्रैम्प आ जाएगा। ओके, सो लिगामेंट्स ओवरस्ट्रेच हो जाने से स्प्रेन होगा। हेपरिन अगर एब्सेंट रहेगा ब्लड में तो ब्लड कोआगुलेट नहीं करेगा। ब्लड कोआगुलेट नहीं करने से जितने भी ब्लड हम लोग की बॉडी में है वो जल्दी से वो बाहर चला जाएगा। तो इसको कोआगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट इज़ वाई इनसाइड द ब्लड वेसल, मतलब ये मान लो ब्लड वेसल है, इसके अंदर अगर हेपरिन ना रहा तो क्या होगा, एब्सेंस ऑफ हेपरिन result in the coagulation of blood inside the blood vessel। तो ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है वहाँ पर अगर हेपरिन नहीं रहा तो इसमें अंदर में ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ओके, रिमेंबर दिस। प्लेटलेट जो है वो क्या करता है, प्लेटलेट एक ऐसा ब्लड सेल है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, लेकिन उसमें हेपरिन नाम का सब्सटेंस रहता है। इसीलिए मान लो कि वेसल के अंदर यहाँ पर कोई कट हो जाए, यहाँ पर अगर बहुत सारा प्लेटलेट आ गया, यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जगह को, तब क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है वही नहीं होगा, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसीलिए हेपरिन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जितने भी प्लेटलेट्स यहाँ पर है उसको सही से वो काम कर पाए। हेपरिन रहे तो कोआगुलेशन रहेगा, लेकिन कोआगुलेशन होगा पर ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होगा, ताकि जो नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड है वो उसमें किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन ना आए। ओके, और ये striated मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब क्या होगा, तब डेफिनेटली देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, तब उसमें क्रैम्प आ जाएगा मसल में। ओके, so in this way we have completed the whole chapter and many questions we have discussed. See you in the next class with another new chapter. All right, thank you.